ओके, सो वील कंटिन्यू। तो शमशेर सर से तो हमने उनका ओपिनियन ले लिया, सो नाउ वील स्टार्ट विद मुनीर सर कि वो बताएं कि व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू थिंक कि वी शुड अप्लाई। राइट, थैंक यू सो मच बीना। एंड आई थिंक मैं शमशेर सर की ही बात के ऊपर बिल्ड अप ऑन करते हुए जो है वो बात करूँगा। आई थिंक एंड व्हाट अनम मिस अनम आल्सो सेड अर्लियर कि जो है वो resilience is all about facing your problems, right? And let's take distraction as a problem right now. And जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम को देखते हैं तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स रूट कॉज। सो मेरा ये सवाल होगा सारे स्टूडेंट्स से जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, एंड इनफैक्ट वी कैन आस्क ourselves as well, including myself, कि why is it that we get distracted? What is it that causes us distraction? I think that's the most important question that we all need to respond for ourselves, and this response can be different for each one of us. So it's not like कि जो है वो मेरे लिए जो चीज़ distraction है वो बाकियों के लिए भी distraction होगी. So distraction can vary for each one of us, and what distracts us can also vary for each one of us. So it's very important to first understand कि what distracts me as an individual, particularly when I'm studying, because आई थिंक सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो स्टडीज़ के टाइम पे होती है ना. इफ़ आई रिकॉल माई ओन टाइम, आई स्टिल रिमेंबर उस ज़माने में जो है वो स्टार प्लस के ड्रामे चल रहे होते थे, एंड वाइल आई वुड नेवर वॉच देम, बट जैसे ही जो है वो पढ़ाई का मोमेंट आता था या जो है वो एग्ज़ाम्स आते थे, तो जो है वो स्टार प्लस के ड्रामे जो कि बहुत ही बेकार लगते थे उस टाइम पे, वो अच्छे लगना शुरू हो जाते थे अचानक से. या इवन जो है वो कोई दीवार जो कि जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाती थी, क्योंकि पढ़ाई नहीं करनी होती थी, राइट? I think it's really very important for us to understand why do we get distracted, and what is the reason behind it. And with recent increase in social media and all these other things, distraction has increased not just for students but even for adults like us, while we are working, while we do anything. So distraction has become something very core. So since I'm sure we all might have responded to ourselves, or we might have identified a couple of reasons कि क्यों हम distract होते हैं. I think one thing that works for me best is that I need to declutter myself. And when I say declutter myself, let's break it down. So it's important कि हमारे जो भी distractors हैं, let's say it be your social media, it be your mobile phone, it be your parents, it be your friends, whoever the distractors are, आपने उनसे एक ब्रेक लेना है. अब हम कहेंगे ब्रेक कैसे लिया जाए. सो ब्रेक लेने के मल्टीपल वेज हैं. हम अगर अपना एक स्केड्यूल बना लें तो दैट रियली हेल्प्स मी, एंड आई फील मैंने जब स्टूडेंट्स को पढ़ाया है स्कूल के अंदर, या इवन राइट नाउ व्हेन आई वर्क, I think this really works well for me, knowing that I have a schedule. I need to complete a couple of things by the end of the day, let's say, or by the end of this hour. So given that schedule or schedule, I think इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं जो है वो अगर उसके ऊपर स्टिक कर सकूँ अपने आप को, उसके तहत अपने आप को चला सकूँ. सो आई देन टेक अ ब्रेक. सो टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्टर्स दैट आई हैव इन माई लाइफ. जैसे शमशेर सर ने कहा कि जो है वो उन्होंने अभी अपना फ़ोन जो है वो चार्ज पे लगा दिया है, बिकॉज ही नोज दैट he needs to concentrate on this particular, let's say, session. Maybe for him the phone might have been a distractor. Maybe for me also the phone is a distractor, right? So the idea is that we all try to take a break and focus on what is important and what is urgent for us. So that's one thing that I would suggest कि जो है वो हम अपना एक शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल के हिसाब से हम जो है वो अपना काम करें, and we keep ourselves or give ourselves a target. So that at least works for me, and I hope and I think it might also work for others. So उस शेड्यूल के अंदर जब आप अपना आपको डिक्लटर कर देंगे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो जो है वो आपका काम जो है वो बेहतर तरीके से हो सकेगा. द सेकंड थिंग इज अगेन गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, व्हाई डू आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. सो हम सब जो है वो आई थिंक विथ टाइम ये चीज़ फेस कर रहे हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम हो गया है. we've probably we are unable to give attention to one particular thing at a given time. तो हमारे लिए जो है वो it's very difficult to sit and do one thing. हम शायद multitasking के जो है वो इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं. या and let's again reframe the situation and not call them distractors, maybe call it
आवर स्ट्रेंथ कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. सो व्हाट इफ आई गिव माई सेल्फ अ चैलेंज, राइट? मैं अपने आप को ही चैलेंज करूँ और मैं कहूँ कि ठीक है, मुझे पता है कि जो है वो मैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर जो है वो उलझ जाता हूँ या डिफरेंट चीज़ें करने लग जाता हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को जो है वो चैलेंज करके एक ही चीज़ पे फ़ोकस रह सकता हूँ. एंड द मोर आई फ़ोकस ऑन वन थिंग, द बेटर इट विल बी फॉर मी. सो लेट्स से अगर मैंने मैथ के लिए टाइम रखा है और मैंने जो है वो 1 घंटा रखा था, बट मुझे पता है कि मैं लेट्स से हाफ एन आवर से ज़्यादा मैथ नहीं कर सकता, या इंग्लिश है या साइंस है या जो भी सब्जेक्ट है, तो मैं हाफ एन आवर या 45 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकता. सो व्हाट इफ आई चैलेंज माई सेल्फ कि ठीक है, मैं आज उसको 30 मिनट्स करूँगा, कल मैं 40 मिनट्स करूँगा. आपने 10 मिनट्स का उसके अंदर इंक्रीमेंट डाल दिया, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर आपको लगता है कि आपका अटेंशन स्पैन 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, सो मे बी यू से कि मैं एक सम पहले सॉल्व करूँगा, आई विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक, एंड देन आई विल डू 2 सम्स टुगेदर, and then I'll do 3 sums together and take a break. So, challenge yourself to give more time or increase your attention span. There are a lot of different exercises as well out there which help us build our attention span. I don't know how many of you have heard the name Luminous, I think, if I'm not mistaken. And once I'm done talking, I'll share the name in the chat box for you all. This is a game, mobile based game. एंड वो दिन में जो है वो रोज़ आपको, इट्स अ फ्री गेम, दिन में रोज़ आपको जो है वो एक टाइम आप उसके अंदर सेट कर दें, लेट्स से रात के 10:30 बजे, 10 बजे आप उसके अंदर टाइम सेट कर दें, वो आपको एक रिमाइंडर देगा. यू प्ले दोज गेम्स एंड दोज गेम्स विल हेल्प यू बिल्ड योर अटेंशन स्पैन, बिल्ड योर resilience, build your direction skills and so on and so forth. So उसके अंदर काफ़ी different games and you won't get bored. It's a very good fun game and you keep challenging yourself because उसके अंदर जो है वो आपका score build होता जाता है. So that way you can build it. And I feel I've started using it for the last 1 or 1.5 year, and I feel that my attention span has improved significantly. So it's also a mind game, I would say. बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हम जो है वो अपने आप को डिफरेंट गेम्स और इस तरह से जो है वो करके वो कर लेते हैं, तो मे बी दिस कुड बी अ गुड वे to help us improve our attention span. So these are my 2 cents for now. And if there are further questions or anything, so we can always come back and discuss these strategies. Anam aapa ne pehle bahut sahi baat ki there are various strategies out there, and we will need to perhaps do something as a trial and error, what works best for me. So what might work for me may not work for others. So we can always look up for more strategies online and even see कि जो वो literature क्या कहता है इसके बारे में. So yeah. वाकई I'll pick the thing scheduling के it's good कि आप अपना काम शेड्यूल कर ले कि what you have to do first then next, because वो जो mess create होता है वो उसमें थोड़ा सा कम हो सकता है. So again this same question goes to Anam Appa, because हमारे पास आपा का थोड़ा सा बच्चों से लिंक लग रहा है थोड़ा ज़्यादा. So over to you. All right. So while Sir Munir posed this question, I was also reflecting on what are my distractors. Okay. So I can't stop myself from checking my phone. So ये मेरे लिए सबसे बड़ा distractor है. ठीक है. But again, it is very important to identify and to make an effort to minimize those distractors, right? So agar main apni baat karu, to few months back while I was doing my thesis, I realized that this distraction is actually impacting my productivity. So उस वक्त मैंने एक technique देखी थी which a lot of people were actually practicing and using, which was a Pomodoro technique. So basically Pomodoro is an Italian name for tomato, right? So basically उस technique में you set a timer for 25 minutes, right? So there are 4 Pomodoros उस technique में, but initially I started with 1 Pomodoro, right? So 25 minutes का timer set करने के बाद जो है वो you select a task, again you just, अच्छा प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत दफ़ा बिना इस वजह से भी होती है, जो जैसे मुनीर सर ने बात की कि you are overwhelmed by a larger task. ठीक है, so try to break those tasks into smaller and manageable parts. ठीक है, तो एक task select करने के बाद you set a timer and you work on the task until the timer goes off. ठीक है, when the timer rings you take a break for 5 minutes जिसमें आप stretching कर सकते हैं, you can get some water and then you start with the second Pomodoro. So initially मुझे से इंसान के लिए जो 5 मिनट भी अपना फोन चेक के बगैर नहीं रह सकती, it was very difficult for me, right?
So मैंने पहले पोमोडोरो तक ही किया for some days and then I shifted to second pomodoro. So basically 4 pomodoros तक you repeat these steps and then you take a long break of 30 minutes. ठीक है, to avoid burnout, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अगर हम काम कर लेंगे तो फिर हमारा जो इंटरेस्ट लेवल है वो वैसा नहीं रहेगा. ठीक है, सो दिस टेक्निक हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट. ठीक है, और अभी भी मैं ऐसे यूज़ करती हूँ व्हेनेवर आई फील ओवरवेल्म. ठीक है, अच्छा उसके अलावा भी ना उस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का एक और हिस्सा ये भी था कि स्ट्रेस मैनेजमेंट रिलेटेड टू एग्ज़ाम, राइट. सो देखिए एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है, अब ये बड़ा मैटर करता है बिना कि हमारी स्टडी और नोट टेकिंग स्ट्रैटेजीज क्या हैं. ठीक है, हम कौन सी टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकें. बिकॉज वट एवर वी आर रीडिंग, वट एवर वी आर डूइंग, इफ़ वी आर अनेबल टू रिट्रीव तो फिर वो एग्ज़ाम में हमारे लिए एनजाइटी कॉज कर रहा होता है. ठीक है, सो देर आर अ लॉट ऑफ नोट टेकिंग स्ट्रैटेजीज आई यूज्ड. मेरी पूरी एमफिल की जर्नी में आई यूज्ड दिस एनोटेशन. ठीक है, एनोटेशन में यू जस्ट हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ एंड देन यू राइट अ कॉमेंट और एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सो देन वाइल यू आर रिवाइजिंग तो आप फिर सिर्फ उन्हीं मेजर आइडियाज़ को जो है वो गो थ्रू कर रहे होंगे, राइट. अच्छा उसके अलावा देर आर अ लॉट ऑफ अदर टेक्निक्स लाइक यूजिंग taking practice test under timed conditions. So there are a lot of practice test, past papers हमारे पास available होते हैं. So try to take those tests under time conditions. क्योंकि usually exam में हम struggle कर रहे होते हैं with time management. So it will kind of simulate the actual exam environment. So वो it will kind of help us in reducing the anxiety जब हम examination setting में होंगे. अच्छा उसके अलावा self testing भी बड़ी important है. Once we have read a chapter, close the book and then try to summarize what you have read. And try to write those ideas what you have learned. ये मेरी मदर ने मुझे सिखाया था स्कूल में एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट. ठीक है, जब हम लिखते हैं सो एक्चुअली हम एक तरह से हम रिवाइज भी कर रहे होते हैं एंड ट्राई टू टीच अदर्स एज वेल. सो मैं अपने स्कूल के दिनों में मैंने अपनी मदर को बड़ा परेशान करती थी. उनको बिठा के जो मैं पढ़ती थी वो मैं उन्हें सब समझाना शुरू कर देती थी. एंड आई थिंक दिस हेल्प्स अ लॉट बिकॉज यू आर एक्चुअली अप्लाइंग व्हाट यू हैव रेड. सो इस तरह की टेक्निक्स. और उसके अलावा यू कैन यूज माइंड मैपिंग. इफ यू पीपल, आई डोंट नो आई हैव हर्ड अबाउट दिस और नॉट, बट माइंड मैपिंग में यू बिगिन विद अ सेंट्रल आइडिया and then you write those sub ideas and then you connect the sub ideas with the central idea with arrows and lines. So I think ये काफ़ी हमारी हेल्प करता है एग्ज़ाम एंजाइटी को कम करने में. और बिना सबसे बड़ी बात ड्यूरिंग एग्ज़ाम, लेकिन ड्यूरिंग एग्ज़ाम भी एंजाइटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अगर एंशियस होंगे तो एग्ज़ाम में वैसे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो कोशिश करें कि सबसे पहले ट्राई टू एलोकेट टाइम फॉर ईच सेक्शन. ठीक है, and if you are stuck in a question, move on and then come back to that question later. उस पर रुक ना जाएं and stay focused and stay present at the moment. हम ज़्यादातर ये कर रहे होते हैं कि either we are dwelling on the past mistakes कि मैं ये पढ़ कर आ जाती, मैं ये याद कर लेता, or we are actually we are sort of feeling apprehensive about the future कि मैं पेपर कंप्लीट नहीं कर पाया या कर पाई, मैं आगे के क्वेश्चंस कैसे करूँगा या करूँगी. कोशिश करें उस क्वेश्चन पे फोकस करें जिस पर आप अभी हैं ऑलरेडी. ठीक है, और सबसे बड़ी बात भी ना जो हमें वैसे तो बचपन से सिखाई जाती है बट एज एन ई मार्कर आई हैव ऑब्जर्व कि अभी भी वो बात हमें दोबारा यहाँ पर मुझे रिपीट करने की ज़रूरत है एंड दैट इज़ रीड द क्वेश्चन. बहुत ज़रूरी है. मैं रिस्पॉन्सेस पढ़कर मुझे अक्सर अफसोस हो रहा होता है कि मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं बच्चों के वो इसी वजह से बिकॉज दे कुड नॉट रीड द क्वेश्चन. और वो कैसे पता चलता है? बिकॉज द रिस्पॉन्स इज कम्प्लीटली इरेलीवेंट और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. Try to read the question, reread it and keep on reading until you understand what you have to write. ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजीज हेल्प कर सकती हैं हमें कि हम थोड़ा मिनिमाइज कर सकें एग्ज़ाम एंजाइटी को. और डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करें बिकॉज ड्यूरिंग एग्ज़ाम इफ़ यू आर स्टिल फीलिंग एंशियस, ठीक है, ट्राई टू टेक स्लो डीप ब्रेथ्स एंड दिस इज़ हाउ यू कैन समहाउ मैनेज योर एंजाइटी. सो या मैं आपकी बात से टोटली रिलेट करूँगी बिकॉज जब मैं खुद अपने एंट्रेंस टेस्ट वगैरह दे रही थी तो बहुत से ना आपको ना एक ऑप्शन देते हैं ट्यूटर मोड और टाइम मोड. सो फॉर सेफ साइड ना हम लोग मतलब जितना भी फ्रेंड सर्कल था हम लोग जाते थे ट्यूटर मोड पे कि गलत जवाब होगा तो सही का पता चलेगा.
बट एक दो बार ना हमने लाइक फॉर चेंज हमने टाइम मोड पे जो है ना जाके उसको प्रैक्टिस किया एंड हमने वाकई में उसमें एक डिफरेंस देखा था कि लाइक हम जो टेस्ट घंटों घंटों बैठ के आराम से कर रहे थे उसके कंपैरिजन में हम जब टाइम मोड में आते थे ना तो वो एक्चुअली वो वाकई में स्टिमुलेशन होता था हमारे सामने कि नहीं वाकई में एग्जाम में भी 3 घंटे वी हैव टू वर्क अप, हम आराम से नहीं बैठ सकते। एंड टू थिंक कि आप जो हो अब क्वेश्चन रीड करो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। हमारे भी लाइक जब एग्जाम्स होते थे पेपर आता था घरों में तो पेरेंट्स यूज्ड टू से कि बेटा पेपर पढ़ क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा है। तो ये एक चीज़ मैंने आइडेंटिफाई की है एंड काफ़ी लोगों को ये रिलेट करेगा बिकॉज हम अमूमन पेपर एक टारगेट होता है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का कि पेपर पूरा भरा होना चाहिए, Exactly. खाली क्वेश्चंस हम नहीं छोड़े, हम सब अटेम्प्ट करें। Exactly. तो अटेम्प्ट करने से ज़्यादा उसमें लिखना मैटर करता है। आई यूज टू डू, मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकती, मैं स्लो राइटर, तो मैं वही अटेम्प्ट करती थी जिसपे मैं कॉन्फिडेंट होती थी कि मुझे वो आता है। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब हमने जो है ना ये देखा, अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप आगे जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना यूनिवर्सिटी एग्जाम वगैरह देती, तो हमारे पास एक चैलेंज आता है जब हम अप्लाई करते हैं, जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, इवन ग्रेजुएशन के बाद भी जब आप प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करते हो तो एक अलग प्रेशर आपको मिलता है, लाइक फ्रॉम सोसाइटी आपको एक प्रेशर मिलता है, रिलेटिव्स का हो गया, पीयर प्रेशर हो गया, एक कंपैरिजन एलिमेंट आपके साथ होता है कि हमें कंपेयर किया जाता है कि एक्स वाई जी जो है वो बहुत, देखो उसका कहाँ एडमिशन हो गया, तुम्हें भी करना है, यू ऑल्सो हैव टू स्कोर 90, जब वो 90 ले आ सकता है तो वाई कांट यू। तो ये वाली चीज़ें और एक्चुअली ये आपको बहुत प्रेशराइज करती है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको कभी प्रेशर नहीं देगी, मुझे बहुत प्रेशर मिलता है अगर मुझे किसी से कंपेयर किया जा रहा हो, आई डू फील इट, और उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट मुझ पर पड़ता है। तो इसमें मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा वो मेरा पेरेंट होगा, क्योंकि मेरे आगे जो फर्स्ट शील्ड उस वक्त होगी वो मेरे पेरेंट की होगी। तो अब जो मेरा क्वेश्चन है ना वो थोड़ा इस तरफ है कि पहला तो ये कि मैं सेल्फ डाउट कैसे खत्म करूं, बिकॉज जब जहां मेरा कंपैरिजन दूसरों से स्टार्ट हो गया, जहां मुझ पे प्रेशर आना शुरू हो गया, मैं ऑलरेडी इतना सब कुछ लेके चल रही हूँ, मैं पढ़ाई भी मैनेज कर रही हूँ, मैं ये वाला स्ट्रेस भी ले रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ, वहीं पे अब मुझे कंपेयर किया जा रहा है। मुझे जैसे मैं अपनी एज से बहुत पीछे हूँ, मेरी एज के लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं बट आई एम लिटिल बिहाइंड फ्रॉम देम। तो कंपेयर होता है कि तुम्हारी एज में तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यू आर स्टिल स्टडीइंग एंड ऑल। तो वो चीज़ मुझे प्रेशराइज, वो मुझे प्रेशर कर रही है, कहीं ना कहीं मेरा जो सेल्फ एस्टीम है वो खत्म हो रहा है, मैं खुद पे डाउट कर रही हूँ कि मैं क्यों नहीं कर पाई, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस चीज इसको कम कैसे करें, खुद पे डाउट करना, बिकॉज अगर मैं खुद पे डाउट कर रही हूँ तो फिर तो मेरा पूरा, अब कोई मेरी तारीफ करे या क्या करे वो मैटर ही नहीं करेगा जब तक मैं अपना सेल्फ डाउट खत्म नहीं कर। मैं कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करूँ, हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट बहुत होता है, जिनको आता सब है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। एक आध स्टूडेंट होता है, एक आध लोग होते हैं उनको सब आता है बट उनमें हिम्मत नहीं होती कि वो आगे आके बता सके। एक वो चीज। दूसरा, पेरेंट क्या रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब मेरा पेरेंट मुझे किस तरह इस जर्नी में सपोर्ट करेगा। तो ये चीजें जो मुझे लाइक अब जितना हमारे पास टाइम है हम उसमें इसी चीज को डिस्कस करें, बिकॉज यहाँ बहुत से पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं एंड स्टूडेंट्स भी हैं, एंड आई एम श्योर, आई एम प्रिटी श्योर कि सब इस चीज को फेस कर रहे होंगे। सो अब थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, वील स्टार्ट फ्रॉम सर मुनीर, बिकॉज शमशेर सर ने मुझे कहा कि मुझसे 2 बार स्टार्ट हो, तो दिस टाइम वील स्टार्ट फ्रॉम मुनीर सर, देन हम आगे स्विच करेंगे। Sure. That's perfectly fine. I think I don't know how many parents do we have here, but agar hai to that's really good. But for I'll begin with the students part. I feel because that's more important. And going back to my first response, it's important to reframe as to how we see ourselves, how do we see the situation, and how do we cope up with the situation. आई थिंक अनम आपा ने काफ़ी जो है वो डिटेल के अंदर स्ट्रेटजीज के ऊपर बात की है विच आर साइंटिफिकली प्रूवन एंड शी herself has used them, so I'm sure they work. But it's really important to look at things in a different perspective. I know it's not easy. It is easy said than done, I feel. But it's all about your power of mind. So आप अगर अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर सको कि you don't see failure or you don't see exams as something where
you will be facing a challenge, yeah, where you will fail perhaps or you will get low marks, तो things can change. हमें एंजाइटी होती ही क्यों है जब हम एग्जाम के लिए जा रहे होते हैं? बिकॉज वी हैव अ फियर ऑफ फेलियर. हमें जो है वो जब भी हम प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे होते हैं, हमें फियर किस चीज़ का होता है कि हमारा या तो मार्क्स कम आएंगे, टाइम में पूरा नहीं हो सकेगा, मैंने पढ़ाई सही से नहीं की. सो ऑल दीज थिंग्स cumulatively create a lot of stress, a lot of anxiety. And while it is important to study, of course, पढ़ाई के बगैर जो है वो कोई चारा नहीं है हमारे पास, right? At the end of the day we do need to study, but the point is that let's say मैं नहीं हूँ किसी सब्जेक्ट में अच्छा, मेरा नहीं ध्यान लग रहा due to any reason. How can I train myself, train my mind to work towards it, to help myself and ensure that I am able to pass that exam at least. मुझे अभी भी याद है कि मैं जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छा हुआ करता था, इन कुछ में नहीं था. एंड वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स वाज अकाउंटिंग. मुझे अकाउंटिंग कभी नहीं पसंद थी, ठीक है. मुझे बायोलॉजी कभी भी नहीं पसंद थी, मुझे फिजिक्स कभी भी नहीं पसंद था. बट ऑन द अदर हैंड मुझे मैथ और इस तरह के जो है वो सब्जेक्ट्स बड़े अच्छे लगते थे. So, my mother used to tell me, it's okay if you don't like these subjects. At least study to the extent that you can pass them. I think जब ये पेरेंट की तरफ से रीअफर्मेशन आ जाती है कि इट्स ओके, ऐसा भी नहीं है कि आपने बिल्कुल फेल हो जाना, बट ये रीअफर्मेशन दैट आई एम विथ माई चाइल्ड, एंड बच्चे को ये चीज़ लगती है कि येस माई पेरेंट इज सपोर्टिंग मी, दे अंडरस्टैंड मी, तो वहाँ पर ही जो है वो आपकी काफ़ी एनजाइटी ख़त्म हो जाती है. कमिंग टू वॉट विल पीपल से, लोगों का काम है कहना, तो वो तो कहेंगे. हमें उसको किस तरह से देखना है? वी टेक इट एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी. मैं बहुत थियोरेटिकल बातें नहीं करूँगा यहाँ पर. आई विल जस्ट से प्रैक्टिकल थिंग्स विच आई फील आर मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज एट टाइम्स वॉट रियली हैपन्स इज कि हम जो है वो एक सिक्लिकल मैनर के अंदर जो है वो फंक्शन कर रहे होते हैं. हम एक ही चीज़ जो है वो गोल गोल घूम रहे होते हैं कि ओके फेलियर हुआ, अब इससे ये हो जाएगा, अब इससे ये हो जाएगा, अब इससे ये हो जाएगा. सो वी कीप ऑन थिंकिंग फॉर द फ्यूचर कि वो किस तरह से नेगेटिवली हमें इम्पैक्ट करेगा. बट what we can perhaps do is how can I as an individual look at the future with hope, right? And when we talk about hope, it's important to understand that for that we need to bring in positive thinking. Reframing the situation is very, very, very important. So for both parents as well as students, reframing the situation will help you, because without reframing the situation you cannot succeed in life ever. क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड अभी प्रोग्रेस कर रहा है, there will be a lot of challenges, not just in exams, not just in schools, but even in work life, beyond work life as well, family के अंदर, personal life के अंदर, हर जगह पे challenges हैं. So it's important to see things and understand कि हर चीज़ अगर एक चैलेंज है हमारे लिए, तो हम उस चैलेंज को या प्रॉब्लम को किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. क्योंकि हम जो है वो डर रहे हैं या हम जो है वो उसको एक नेगेटिविटी के तौर पे देख रहे हैं, तो हम जो है वो बैठ जाते हैं या हम उसको एक फुट बैक ले लेते हैं, राइट? दैट्स नॉट हाउ वी शुड बी वर्किंग. रेजिलियंस उसी वक्त आएगी जो शमशेर सर ने कहा कि जब हम प्रॉब्लम को फेस करेंगे. अनम आपा ने जिस तरह से कहा कि देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अवेलेबल, सो देयर इज नो वन स्ट्रैटेजी दैट फिट्स ऑल. वी नीड टू सी कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि मेरे लिए वर्क करेगी, जो मुझे हेल्प करेगी. सम थिंग्स दैट हैव वर्कड फॉर मी इज ग्रुप स्टडी, बिकॉज ग्रुप स्टडी के अंदर अक्सर ये होता है कि हम जो है वो एज फ्रेंड्स एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं एंड साथ ही साथ जो है वो एक दूसरे को चैलेंज भी करते हैं. सो लेट्स से इफ वी आर 3 फ्रेंड्स, आई कैन से कि मैं टॉपिक एक्स पढ़ूंगा, यू कैन स्टडी टॉपिक वाई, the other person can study topic Z, and हम तीनों मिलके एक दूसरे को फिर पढ़ाएं, उसको जो है वो रिवाइज करें और इस तरह से करें. सो उसके अंदर हमारा रिविजन भी हो रहा है एंड देन वी चैलेंज ईच अदर, वी आस्क क्वेश्चंस टू ईच अदर, वी कैन अटेम्प्ट पेपर्स टुगेदर एंड मेक इट अ चैलेंज गेम वेयर बाय कि जो है वो लेट्स सी कि किसके जो है वो ज़्यादा करेक्ट आंसर्स आते हैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट स्टूडेंट्स लाइक दीज डेज. हम जो है वो इस तरह की चीज़ों को जो है वो पॉजिटिव
चैलेंजिंग कहते हैं, या जो है वो एक तरह से जो है वो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाती है, बिकॉज हमें पता है कि हम इसको जो है वो हेल्दी कंपटीशन के अंदर तब्दील कर रहे हैं. So this is my request to the parents. It's very important to let your children work with your friends, with their friends, because we cannot make them study in isolation these days. It's very important. हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको isolation में पढ़ना ज़्यादा पसंद है, so you allow them that. So parents will need to be flexible. They need to understand. They need to become friends for their children. And अगर यहाँ पर students हैं और उनके parents नहीं हैं, so you need to help your parents understand what is it that you require. Because हम at times अपने parents के साथ communicate ही नहीं करते हैं चीज़ें कि हमारे जहन में क्या चल रहा है या मुझे क्या चीज़ पसंद है, because we have a fear. I understand at times parents also have this worry कि जो है वो हमारा बच्चा अगर अच्छा नहीं करेगा तो जो है वो उसका फ्यूचर जो है वो problematic situation में होगा and things like that. But then we also need to understand that these children right now are growing up in a very dynamic world. हमें नहीं पता आज से 5 साल 10 साल बाद जो हम प्रोफेशन देख रहे हैं कि वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, वो 5 या 10 साल बाद अच्छा होगा भी कि नहीं होगा. And an example is a recent one कि COVID-19 के बाद जिस तरह से चीज़ें चेंज हुई है, जिस तरह से प्रोफेशंस चेंज हुए हैं, जिस तरह से स्किल सेट्स चेंज हुए हैं. So, you know, it's not easy to anticipate what the future holds. What we can do is we can support our children, and the children जो कि हमारे students हैं, they need to also understand कि they need to work hard. So, अगर हम ये अपने दिमाग में बिठा लें कि yes, we need to study, we need to work hard for ourselves, not for our parents, not for our brothers and sisters, not for our friends, but for our own selves, that is the motivation enough. Because we see all around us कि जो है वो किस तरह से जो है वो जो लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है वो जो है वो सफ़र कर रहे हैं. Yes, we also do have examples who are maybe perhaps school dropouts and they've gained positions like EOs and have become big people, right? CFOs and all those. So that is a very lucky I would say group कि जिनके साथ ये हो जाता है. हर किसी के साथ ये नहीं हो सकता. So हम उनको जो है वो benchmark नहीं कर सकते. We also need to understand that we have a certain skill set, we have a certain situation where we are functioning in. So, you know, we plan accordingly and we work accordingly. We give our best to everything and then we let the faith decide कि जो है वो हमारे लिए future में क्या है. I think strategies इसके अंदर जो है वो मेरे हिसाब से और कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, but to train your own mind to, you know, think positively, be positive and work towards the betterment of your own self rather than think about कि what will people say. Because लोग again at the end of the day will say a lot of things. Even अगर आप 99% marks लेकर आओगे, लोग कहेंगे 100 नहीं आए, ठीक है. So let them say whatever they want to. It's up to us. How do we praise ourselves? How do we keep ourselves motivated? So yeah, इससे मुझे वो भी याद है कि हमें कहा जाता है ना कि your result will not decide your future. I guess future का पता नहीं, but आप पेपर शीट के नॉट डिसाइड योर एबिलिटीज कि आप कितने केपेबल हो. हम अमूमन ये गलत परसीव करते हैं. आपने कहा स्कूल ड्रॉप आउट, इट्स एग्जैक्टली द सेम. नॉट एवरीवन इज सेम. पांचों उंगलियां कभी इक्वल नहीं होती एक दूसरे से. तो या अपनी एबिलिटीज पे हमें डाउट नहीं करना उस शीट को देख के, बट फ्यूचर का तो वी हैव टू लुक. सो दैट्स अ मैसेज फॉर पेरेंट्स के बच्चों के साथ चले, बिकॉज हमें पता है एक चीज है जो एज हम अपने स्टूडेंट्स को कहते थे, लाइक जब हम एज लाइक मैं स्टूडेंट थे, मेरे टीचर्स कहते थे पढ़ाना हमारा काम है, यू आर द वन हु इज गोना सिट इन द एग्जाम. तो फिर हम ये गारंटी नहीं ले सकते व्हाट यू आर गोना स्कोर. तो यही चीज़ है कि हम जो एक हर तरफ से जो प्रेशर आता है ना, वो ये भूल जाते हैं कि प्रेशराइज तो सब कर देते हैं, बट उस प्रेशर को झेलने वाला और उसका जो इफेक्ट है वो एक ही पर्सन का आता है. एंड देन फिर वो इफेक्ट फिर सबको वो करता है कि why weren't you able to do it. So nobody realized कि वो जो weren't able हुआ वो इसीलिए हुआ कि बैक पे जब हमने उसको पत्थरों के नीचे दबा दिया, now we are asking कि तुम निकलो बाहर. So it's not possible. So yeah, that's a micro teaching का जो ये option था, that's very good. I would really encourage कि आप micro teaching करो within your friend circle, because हम community basis पे we also do teaching, so we know that कि हमें ये कहा जाता है कि do micro teach, to teach your students to micro teach कि कैसे किया जाता है.
इन सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशंस, एक छोटे भाई बहनों को पढ़ाना, कुछ भी करके। बचपन में कहते थे टॉयज को सामने लगा दिया सारे स्पीचेस के लिए एंड वी यूज्ड टू स्पीक, दैट्स आल्सो गुड ऑप्शन। वो आपको सुनते नहीं है, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू, बट आपको ये होगा कि यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन योर हेड, वो सारा रह जाएगा। सो या अब हम शमशेर सर के पास जाएंगे, बिकॉज शमशेर सर वाला जो है ना वो है कॉन्सेप्ट बेस। हमारा ओ लेवल से कॉन्सेप्ट बेस के रट्टा नहीं लगता, सिर्फ कॉन्सेप्ट लगता है। तो सबसे ज़्यादा भारी ये चीज़ हमें पड़ती है कि वो सब कुछ लेके और फिर वहाँ पे जब हमारे 25-25, 30-30 हज़ार पर पेपर जाते हैं तो फिर एक अलग प्रेशर आता है कि भाई ए स्टार तो लाना ही है। एंड ये फैक्ट है कि ज़रा से रिजल्ट कम आए तो पेरेंट्स मायूस होना बनता है ऑफकोर्स, बट एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो दूसरों का आता है कि क्यों नहीं आया। तो ये मैं आपसे स्पेशली कहूँगी कि आप एड्रेस करो कि क्योंकि ये है एक पेरेंट का इनपुट आ रहा है, फाइनेंशियल, इमोशनल, मोरल, हर तरह का। तो लाइक रिएक्ट करना जायज़ कि आप रिएक्ट करो, बट किस हद तक पेरेंट को रिएक्ट करना चाहिए, या स्टूडेंट को या बच्चे को उसको कितना एब्जॉर्ब करना चाहिए, या वो कितना कर सकता है एब्जॉर्ब। बिकॉज टीचर्स के पास बच्चे बाद में शिकायत लाते हैं, सर मम्मी तो डांटती है अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए। ये हम जब यूनिवर्सिटी के जाए तो मैं अपने कुछ टीचर से आज भी कांटेक्ट में, तो मैं उनको बताती थी सर वो जो है ना घर पे बड़ा वो हो जाएगा कि अगर मेरा नहीं हुआ इस पर्टिकुलर फील्ड में तो उसको कैसे करें, वहां जब इतना पैसा भी पीछे से हमारे पास लग रहा है पेरेंट्स का। शमशेर सर आप ऑडिबल नहीं होते कभी कभी अरे हमें। यार लोग मुझे सुनना नहीं चाहते, मैं बोलना बहुत चाहता हूँ, देखिए खुद ब खुद म्यूट हो जाता है। मगर थैंक यू सर मुनीर, जो है वो आपने सबसे पहले तो मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, बीच में कैसे डिस्ट्रैक्ट किया आपने, ये गेम डाल दी तो मैं चेक कर रहा था गेम में है क्या। मगर ये कि ऑब्वियसली ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और मैं अपनी टीचिंग पे ये बिल्कुल यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारी ऑनलाइन टीचिंग में डेफिनेटली चीज़ें ये एडअप होती हैं। अच्छा, जब मुनीर सर कह रहे थे तो मेरा माइक म्यूट था, वो तो खैर म्यूट किया हुआ था, मैं खूब हंस रहा था ना पीछे एक बात पे। वो इसलिए हंस रहा था क्योंकि मुनीर सर ने कहा कि 99 आए, 100 क्यों नहीं आए। अबे भाई 99 आ गए, अब क्या एक मार्क्स से तो इतना प्रॉब्लम थोड़ी है। खैर, मगर ये कि ये चीज़ होती है, तभी मुझे इतनी हंसी इस वजह से आ रही थी क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा स्टूडेंट है, उसके 99 आए और 100 नहीं आए। जब वो बच्चा, मैं असल में एक्चुअली कनेक्ट करूंगा पेरेंट्स का ही, कि जब वो बच्चा मेरे पास फर्स्ट टाइम आया, देखें मैं ये कतई अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा, पहले बता रहा हूँ कि उसके पहले 87 आते थे, अभी 99 आ रहे हैं, तो मैं अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। मेरा जो पढ़ाने का स्ट्रेटेजी होता है ना, वो पेरेंटल के साथ बड़ा होता है। सबसे पहली चीज तो देखें, मैं ग्रुप बना लेता हूँ जिसमें पेरेंट का होना लाजमी है, ताकि वो मॉनिटर करे वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, सही है ना, इसमें कोई नहीं है, जो भी बात होगी ग्रुप पे होगी। पहली चीज तो पेरेंट क्या करता है, मॉनिटर करता है। दूसरी बात, पेरेंटल सेशन होते हैं मेरे उनके साथ, वो कुछ नहीं कहते हैं, मैं कहता हूँ आओ मेरे से बात करो, ठीक है। जब वो बात करते हैं ना तो वो मेरे से ही कहते हैं, सर वो अपना जो है वो स्टूडेंट का नाम तो लेना नहीं है, XYZ स्टूडेंट, या कोई भी, लेट सपोज हमारे पास ये अरमान साहब बैठे हैं, तो अरमान के एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी। कि अरमान साहब के जो है वो अम्मी से बात हुई और अम्मी कह रही हैं कि अरमान के जो है वो अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। बोला कितने आ रहे हैं, बोला सर पहले 87 थे, 93 आ रहे हैं, 100 क्यों नहीं आ रहे। ये असली कहानी मैं बता रहा हूँ। तो मैं परेशान, मैंने बोला मिस आप 87 से 93 के हैं, 6 मार्क्स का गैप जंप हुआ है। नहीं नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बेटा 100 लाइक टॉप करे पूरी क्लास में। देखिए आप उसको प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, राइट। मेरे पेरेंटल सेशन बहुत होते हैं स्कूल में, मैं उनको सिर्फ एक गाइड करता हूँ कि आप प्लीज सपोर्ट करें। अगर मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी यहाँ पे बताऊं तो जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं जो बिलो एवरेज हैं और जो अच्छे भी, बड़े मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। मैं शमशेर सरफराज ONA लेवल मैथ्स टीचर, आज तक कभी A ग्रेड नहीं लाया हूँ स्कूल में, ठीक है। बड़ी मोटिवेशन मिल गई, वाह है, आज तक कभी नहीं लाया मैं A ग्रेड। मेरा जब C आता था, माय फादर एंड माय मदर वाज टू से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि वो कहते थे पास हो गया बड़ी बात है, क्योंकि जो उसकी हरकतें हैं, पास हो गया शुक्र हम मनाते, हमारे स्कूल की फीस वसूल हो गई। द प्रॉब्लम इज दैट कि ऐसा नहीं होता है हमारे पास, कि आप समझ रहे हैं कि सब चीज, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, उसके बाद ऐसा सपोर्ट हटाया, पैसे देना ही बंद कर दिए।
बोला खुद कमा खुद खा। यार ये तो बड़ा मसला है। यहाँ तक कि माय फादर यूज्ड टू से पैसे नहीं है, जुमेरात को तुझे मिलेंगे। यार आई वाज लाइक कि शायद जुमेरात तो खर्ची मिलेगी। एंड इट वाज लाइक जब मैं जुमेरात का दिन आया और मैं अपने बाबा के पास गया, असली कहानी बता रहा हूँ मैं आपको। जब मैं अपने बाबा के पास गया, बाबा को बोला पापा प्लीज खर्ची दे दे, आपने जुमेरात को बोला था। तो उन्होंने मुझे अपने हाथ में प्याला पकड़ा दिया, बोला जुमेरात मस्जिद, खर्चा बहुत। मतलब यहाँ तक के मेरे फादर ने मुझे ट्रेन किया। इट्स नॉट लाइक दैट कि यार मेरे पे जुल्म हो रहा है, नहीं, वो मैं उस टाइप का बंदा था कि जो मुझे सबक सिखाना जरूरी था। खैर उसके बाद जब मैंने बैचलर किया, अपना मास्टर्स किया, तो उसमें जाहिर सी बात है जब आप खुद खुद कमाते हो, खुद काम करते हो ना, तो आपको लक पता जाता है। तो वो वही बताना चाह रहे थे। खैर सारी चीज़ें हो गई और हम आगे बढ़ते गए और सारी चीज़ें करते गए। तो उस वक्त क्या था कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। वो जो कहते थे यार तुझे जो करना है कर, जैसा करना है कर, मगर तुझे खुद करना है, ठीक है, क्योंकि एट द एंड तुझे जो है वो बेटा, वो बोलते हैं ना कि शीशे के आईने के सामने तू ही दिखाई देगा और कोई नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तू है। और मैं मेरे दोस्त लोग, मैं एक स्टेटमेंट एक यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो आजकल सो कॉल्ड बड़े, आपने जो जेन जी में बड़ी ज़्यादा चल रही है, जो मैं सुनता भी हूँ, तो वो कहते हैं कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ठीक है ना। तो अपने को देखना है अपना, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर आप कोई गलती करोगे अपने डिसीजन से करोगे, तो याद रखना आपको इतना ज्यादा अफसोस नहीं होगा, ताकि वो कल को बोले भाई अरमान ने बोला था तो मैंने किया। भाई अरमान तो बोलेगा ना, तुम अपना करो, तुम अपना दिमाग लगाओ। तो अपने दिमाग लगाने से बहुत सारी चीजें हो जाती है। खैर ये हो गया वन फेज। सेकंड फेज पेरेंट पे आता हूं मैं। प्लीज सपोर्ट कीजिए। 99 है, इससे पहले क्या थे, ठीक है, कम थे। और अभी वो माशाल्लाह से इतने ट्रेंड हो गए हैं कि बस वो 99 आता। अब जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके परफॉर्म कर रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग को देख रहा है। तो ये बड़ी अहम चीज होती है जो मैं इनको बार बार समझाता हूँ। एक अभी रिसेंट में एग्जांपल दूंगा कि एक स्टूडेंट है, वो बड़ा रिलैक्स रहता था और सारी चीजें जो है ना, बस वो अपना बेस्ट देता था। हुआ क्या कि जब रिजल्ट आया तो उसको कॉल आती है कैम्ब्रिज की तरफ से कि आपका एक सर्टिफिकेट आया है, तो आपको इनवाइट किया गया है। तो वो अपने बाबा को बोलता है कि शायद कोई मैंने पार्टिसिपेशन किया होगी, उसका सर्टिफिकेट है ना, मैं लेकर आता हूँ। तो वो अकेले चले गए। अकेले चले गए तो उन्होंने बोला आपके पेरेंट्स किधर हैं? बोला पेरेंट्स को क्यों लाना, आप मुझे सर्टिफिकेट दो, मैं घर जा रहा हूँ भाई। तो वो कहता है भाई आपकी सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट को क्या समझ रहे हो? बोला आप मुझे सर्टिफिकेट दें, मैं वो लिफाफे में डाल के अपने पास रखूंगा, अगली मर्तबा स्कॉलरशिप में काम आएगा। वो बोलता है नहीं भाई आपकी डिस्टिंक्शन आ गई है, तो उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए मम्मा पापा किधर है? बोलते हैं मेरी डिस्टिंक्शन आ गई। अब देख कहने का मकसद क्या है कि वो बच्चा अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा था, वो बेस्ट इतना ज्यादा आउटकम हो गया कि उसकी डिस्टिंक्शन आ गई, वो टॉप कर गया। वो एक्चुअली कतर का केस है, वो टॉप कर गया। रिसेंटली उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, उसमें वो टॉप कर गया। वो मुझे आके कहता है सर मैं वाकई इतना अच्छा हूँ। हाँ, मैंने बोला बेटा तू तारे जमीन पे था, अभी उड़ना शुरू हो गया, तो तू उड़ते रहे अभी, ठीक है, तुझे लग पता गया है मेरे भाई कि तू करना क्या चाहता है, ठीक है। मगर उसके बाद उसका एक जगह ग्रेड बहुत खराब आया, फिजिक्स में ग्रेड बहुत खराब आया और मैथ्स में थोड़ा खराब आया अभी, ठीक है। तो उनके फादर से मेरी बात हुई और बड़े उनके फादर जो है वो एरोनॉटिकल इंजीनियर है कतर में। तो वो मुझे कह रहे शमशेर साहब घबराना नहीं है, ऑल इज वेल। मैंने बोला सर ऑल इज वेल ही होना चाहिए। तो ऐसे पेरेंट हमें बहुत ज़रूरत है। बोला नहीं सर आई एम स्टिल हैप्पी कि उसने इतना स्कोर किया, इतनी अचीवमेंट की, वो भी तो आपके जरिए की है, उसने खुद ने की है। लेट्स सी कोई मसला नहीं है, वो रीअटेम्प्ट देके वो कोशिश करेगा। और बच्चा काफ़ी घबरा गया था। तो अभी जब मैं आया हूँ सेशन से, उससे पहले ही मैं उसकी क्लास ले रहा था और वो कह रहा था सर मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ ऑडियंस के बीच में, आप बहुत अच्छा बोलते। तो बोले कि नहीं यार, मैंने बोला अभी तुम्हारी कोई और क्लास है तुम चले जाओ। तो कहने का मकसद है वो काफ़ी घबराया हुआ था। तो अगर मैं एज एन पेरेंट के तौर पे डील करूं तो मैंने उसको बोला बेटा मैं पेपर के एक दिन पहले तक तेरे साथ हूँ, ठीक है, तुझे घबराना नहीं, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, मैं तो हूं ना, मुझसे गाइडेंस ले लो, कोई भी चीज पूछनी हो, कोई भी, अगर मुझे नहीं भी आती होगी, पेरेंट्स होता है ना, क्योंकि आजकल के जेन जी ऐसी है बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं पेरेंट्स को,
ठीक है। तो वो अपने लिंक से चीजें पूछते हैं, जिस तरह अगर मुझे कोई चीज नहीं आती तो मेरी पूरी एक टीम है बैक एंड में, ठीक है। तो जो मैं उनसे पूछता हूँ कि सर ये प्रॉब्लम नहीं, उस्ताद का भी उस्ताद होता है, सर ये प्रॉब्लम है, उसको किस तरह कैटर करें। तो ये मैं चीजें बच्चों को बताता हूँ कि यार इस तरह नहीं, इस तरह, यानी आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट इन एनी वे। तो ये पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। अलोंग विद दैट मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर होगा तो वो काफी 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 आगे निकलेंगे, रादर देन आप ये सोचते रहे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगा, क्या है क्या नहीं। अब यकीन माने कि मैंने जितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, मुझे नहीं पता, वो कहते हैं कि मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे पास जितने भी बच्चे आते हैं वो बिलो एवरेज आते हैं। तो वो कहते हैं सर कैसे? मैंने बोला कुरान में शायद लिखा है जिसका मफहूम ये है कि इंसान को अपने गुनाहों की सजा इस दुनिया में भुगतनी है, तो वो गुनाह जो है वो तुम्हारी शक्ल में मुझे आए लगता है। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम है। मैंने बोला यार आपकी जो है वो बस गुनाहों की माफी जो है वो मुझे मिल रही है, और आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मगर वो इम्प्रूव करते क्यों? क्योंकि उनको सपोर्ट है, उनको पहले ही बता दिया। अब यकीन माने कि मैंने उस बच्चे को बोला है ना, तो मुझे रात को भी मैसेज करेगा, मैं रिप्लाई करूंगा। देखो रात को मैं सोया हुआ होगा, उसको रिप्लाई में दे नहीं सकूंगा और वो मैसेज भी नहीं करेगा, उसको कॉन्फिडेंस मैंने इतना दे दिया। कॉन्फिडेंस इज वेरी 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 नेसेसरी for your children, for the students to make a big growth in their mind, in their career. दोबारा मैं वही कह रहा हूं, करियर कोई भी हो, जो आपको पसंद है आप करेंगे, आपको मजा आएगा काम करने में। अगर मैं 9 आवर्स टीचिंग करता हूं, एक आम अगर बीना कर ले 9 आवर्स टीचिंग, वो तो 9 आवर्स में से 8 घंटे डिस्ट्रैक्ट होगी और 1 घंटा पढ़ाएगी, क्योंकि वो शायद उसका काम नहीं है। मेरा काम वो है, मैं 9 घंटे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मजा आता है वो काम करने में। मुझे दुनिया की कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। इनफैक्ट पेरेंट इतने सपोर्टिव है कि वो उस टाइम के दरमियान मुझे जो है वो या तो वॉइस नोट करेंगे, और जब मैं उनको रिप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली मैं उनके बात करूंगा। नहीं, वो सपोर्टिव है ना, क्या मेरा बच्चा उस दिन पढ़ा रहा है, काम कर रहा है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम जैसे लोगों के लिए भी बड़ा जरूरी होता है पेरेंट का सपोर्टिव होना। क्योंकि हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो हम फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, हमें सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तो वो भी बड़ा सपोर्टिव बहुत 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 जरूरत है। अ पीस ऑफ माइंड इज वेरी नेसेसरी इन ग्रोथ। जो कि मैं एक आखिरी में स्टेटमेंट ये बोलना चाहूंगा, मगर ये कि ग्रेड्स विल नॉट डिसाइड योर करियर, ठीक है। एग्जाम्पल सर मुनीर ने भी दी, एग्जाम्पल मैं खुद आपके सामने हूँ, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने स्कोर नहीं किया, बट उन्होंने अपना बेस्ट दिया जितना वो दे सकते थे, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट सपोर्ट शायद वो आज उस मुकाम पे हैं, उस इज्जतदार मुकाम पे हैं कि उनके पेरेंट्स कह सकते हैं कि यस वी ऑल डिड अ ग्रेट जॉब, इट्स अ टीम एफर्ट। और वो एक्सपीरियंस जब वो सीखते हैं तो वो अपने आगे फैमिलीज को पास ऑन करते हैं कि बेटा जो करना है अपने डिसीजन से करना है, व्हाटसोएवर आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू बीना। एग्जैक्टली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ओन करना, कि अगर बच्चे को उस फेस में अगर बच्चे के साथ 3 लोग हैं, टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट, तो बच्चे का जो भी रिजल्ट आए उसको ओन करने के लिए भी वो तीनों पार्टीज वहाँ हो। ऐसा नहीं कि बच्चे को सक्सेस मिली तो तीनों हैं और अगर नहीं मिली तो वो बच्चे पे डाल दिया कि तुम्हारी वजह से। बिकॉज अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इसका हरगिज़ ये मतलब कभी नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेहनत ना करे। मुझे पता है मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, मैं उसके लिए अपनी जान लगा दूंगी, बट अगर वहां मेरा नहीं होता तो इसका मतलब 10 लोग आके मुझे ये बोल के जा रहे हैं कि शायद तुमने मेहनत नहीं की थी। दैट इज रॉन्ग, जो मुझे खुद पे डाउट कराता है। और पेरेंट्स को भी ये समझना जरूरी है कि बच्चा हर वक्त सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ेगा, कभी ना कभी वो सीढ़ी से नीचे उतरेगा। रास्ते में भी जब हम फुल स्पीड में जाते हैं तो स्पीड ब्रेकर आता है और हम स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करके फिर वापस स्पीड पकड़ते हैं। तो सेम गोज विद सक्सेस एंड फेलियर, कि हर वक्त सक्सेस नहीं होगा, एक आध बार फेलियर आएगा। तो प्लीज उस टाइम पे अपने बच्चे के साथ रहें, उसको सपोर्ट करें, बिकॉज वो स्पीड ब्रेकर अगर बार बार रिपीटेटिवली आया ना तो बच्चा बहुत टूट जाएगा। उसको आप सपोर्ट करो कि वो दोबारा से धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़े वापस। तो नाउ ओवर टू अनम मिस, कि वो क्या व्यूज रखती हैं इस चीज के बारे में, बिकॉज
एमफिल किया है तो जाहिर बात है पीछे से प्रेशर भी उतना ही आया होगा, जितनी बड़ी डिग्री उतना ज़्यादा प्रेशर। एग्जैक्टली। सो बीना, पहले बात कर लेते हैं सोशल कंपैरिजन की, राइट, विच वी गेट टू सी अ लॉट। ठीक है, सो जब हम सोशल कंपैरिजन की बात करते हैं तो देखिए इसकी जो रूट कॉज है वो है एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, हमें अपेरेंटली जो दिखाया जा रहा होता है सोशल मीडिया में, समवन इज अचीविंग एंड देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स to those who have it all figured out. ठीक है, so we start feeling as if we are lagging behind others. तो देखिए एक्सेप्टेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि everyone has their own journey. ठीक है, so there is no right path to it. जैसे बीना initially you mentioned कि your class fellows are now graduating, right? और आपने अभी अपना सॉरी सो यूनिवर्सिटी करियर आपने अभी अपना स्टार्ट किया है। सो देखें, ज़िंदगी कोई रेस नहीं है कि जिसने 2 साल में कोई चीज़ अचीव कर ली और किसी ने 4 साल में कोई चीज़ अचीव कर ली तो वी स्टार्ट सेइंग दैट समवन हु हैज़ अचीव्ड दैट इन 2 years वो ठीक कर रहा है या कर रही है, और जो वक्त लगा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सो देखिए, पहले तो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं सेल्फ डाउट पे। तो सेल्फ डाउट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर। सो इफ़ वी डाइसेक्ट दिस वर्ड सेल्फ डाउट, सो देखें डाउट है, स्केप्टिसिज्म है, रियलिटी नहीं है। ठीक है, अब उसको चैलेंज कैसे करना है? सो आई वुड लाइक टू मेंशन ओवर हियर कि मैंने इनिशियली जो बात की थी जर्नलिंग करने की। ठीक है, सो व्हेन वी आर कीपिंग अ जर्नल, ठीक है, तो उसमें जब हम अपने थॉट्स लिखते हैं, सो फॉर एग्जांपल इफ a negative thought has popped up into my mind and that thought is I'm a loser, for example. ठीक है, so just write down that thought, I'm a loser, for example. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फॉर ईच नेगेटिव थॉट यू हैव टू राइट दोज accomplishments। पहले तो रिफ्लेक्ट करें खुद पर, अपनी पास्ट accomplishments पर आप रिफ्लेक्ट करें एंड देन राइट दोज accomplishments who are actually challenging that specific thought. So basically this will help you out in questioning the validity of that thought. क्योंकि देखिए बहुत सारे थॉट्स होते हैं, वो फैक्ट नहीं होते हैं। सो हम अक्सर बहुत परेशान हो जाते हैं उन थॉट्स की वजह से कि ये रियलिटी तो नहीं है, एम आई अ लूजर। ठीक है, पहले तो ये करना है, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। दूसरी बात ये करनी है कि वी नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं ना, बी काइंड टू अदर्स, so be kind to yourself as well, don't be so hard, you have your own life. So treat yourself with the same kindness you would offer to your friend. Imagine your friend is suffering through something, कुछ भी आपका दोस्त किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, how would you console that friend? अपने आप को भी वैसा दिलासा देना है। काफी वियर्ड लग रहा होगा सुनने में, बट दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जिसको हम साइकोलॉजी में पॉजिटिव अफर्मेशंस भी कहते हैं, कि यूज जेंटल लैंग्वेज फॉर योरसेल्फ, स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स अपने आप के लिए कि आई एम केपेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ग्रोइंग, आई एम डूइंग माई बेस्ट। तो ये जो वर्ड्स जो जो जो, जो इन लफ्ज़ों का हम इंतखाब करते हैं ना बीना, इसका भी हमारे माइंडसेट पे, हमारे हम ब्रेन को क्या फीड कर रहे हैं, एंड विच विल क्रिएट अ पॉजिटिव ऑरा इन अवर सराउंडिंग। अगर हम खुद के लिए ही ऐसे लफ्ज़ों का इंतखाब करेंगे तो उसका ऑरा नेगेटिव क्रिएट होगा हमारे सराउंडिंग में। तो सेल्फ टॉक बहुत ज़रूरी है, जिससे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करेंगे एंड इवन द प्लांट्स ब्लूम। अगर हम, बहुत सारी ऐसी रिसर्च स्टडीज़ हैं बीना जो ये बताती हैं कि व्हेन वी स्पीक गुड वर्ड्स टू देम, सो दे ब्लूम, विच सपोर्ट्स देयर ग्रोथ। सो आप सोचें कि अगर हम वही अच्छे अल्फाज अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बड़ा आसानी से खुद के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं कि मैं तो केपेबल नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता या कर सकती। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आपका सेल्फ इमेज क्या है, आर यू फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। विद दैट बीइंग सेड, ऐसा नहीं है कि आप अपनी वीकनेसेस पर गौर ना करें, बट अपनी वीकनेसेस पर गौर उस पर्सपेक्टिव से करें कि हाउ यू कैन इम्प्रूव, हाउ यू कैन ओवरकम दोज वीकनेसेस। तो इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा काफ़ी हद तक जो है वो डेवलप होगा। अच्छा, उसके अलावा खुद को ये भी समझाएं कि दैट प्रॉब्लम और सफरिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम समझ रहे होते हैं कि हमारी जो सफरिंग या जो प्रॉब्लम है विच वी आर फेसिंग राइट नाउ, हमारी ज़िंदगी पूरी इसके इर्द गिर्द घूम रही है, विच इज़ नॉट द फैक्ट। वो मोमेंटरली है जो हम प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड विच विल ग्रेजुअली पास। ठीक है, वो मोमेंट ख़त्म हो जाएगा। सो अपने आप को
अपने आप के लिए वही पॉजिटिव माइंडसेट की मैं बात करूंगी. आई वुड लाइक टू रीइटरेट व्हाट मुनीर सर सेड कि पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं बिना पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट की. ठीक है, मैंने शुरू में भी बात की व्हाइल आई वाज रेफरिंग टू इमोशनल प्रोसेसिंग कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ पेरेंट इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन प्रोसेस टफ इमोशंस. तो देखें, उसमें सबसे पहला रूल तो healthy relation build करना है. When you build a healthy relation, so then your children would be vulnerable in front of you. देखें बच्चे, I have a lot of my friends who are psychologists, तो वो जो मेजर कंसर्न बताते हैं amongst teens, वो यही बताते हैं कि वो ये कहते हैं teenagers के we cannot express what we are feeling in front of our parents. तो ऐसा क्यों है? Because we are not providing them with that space. वो comfort थोड़ा सा मिसिंग लगता है मुझे, जिससे वो खुल के बयां कर सकें कि वो महसूस क्या कर रहे हैं, चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं, या दे आर गिविंग देयर बेस्ट शॉट बट स्टिल दे आर अनेबल टू अचीव व्हाट दे आर ट्राइंग टू. तो ये बड़ा ज़रूरी है. और इसके अलावा भी ना एक ये भी है कि जितना हम अपने बच्चों को प्रेशराइज करेंगे उतना हम उनकी वेल बीइंग पर एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पैदा कर रहे हैं. सो माई रिसर्च वॉज ऑन एडोलेसेंट EI लेवल्स. सो व्हाइल आई वाज डूइंग माई रिसर्च, तो उसमें लिटरेचर ये बताता है कि सिंध में सुसाइडल रेट्स बहुत ज़्यादा हैं. राइट, सुसाइडल रेट्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, आप देखें एडोलेसेंट्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज ज़्यादा पाए जाते हैं. उसकी क्या वजह है? अगर कभी रूट कॉज जो लिटरेचर बताता है, एंड इवन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, कि एक तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं व्हाट दे आर फीलिंग. ठीक है, और उन पर इतना एक्सेसिव प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है. चलिए, सोसाइटल प्रेशर तो फिर भी बाद में आता है, पहला प्रेशर जो आता है वो घर से आता है. सो आप ये सोचें कि कोई भी चीज़ क्या इतनी ज़रूरी है कि इट स्टार्ट्स टेकिंग अ टोल ऑन योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ. ये सारे पेरेंट्स को अपने आप से सवाल करना चाहिए. ऑल्दो अचीवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए you need to achieve, you need to have good grades as per the university requirement. देखिए, I don't believe in these grades and stuff, बट फिर भी देखें आप अपने बच्चों की वेल बीइंग कैसे मुतासर होती है जब हम उन पर इतना ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करते हैं. बिकॉज वो प्रेशर सिर्फ आपकी जानिब से नहीं है, फिर पीयर प्रेशर भी होगा उन पर, फिर सोसाइटल प्रेशर भी होगा. सो उसको बड़ा हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है. तो I think this is how we can work on building a good relation with our children. Yeah. Of course, ये भी एक important चीज़ है कि it's fine if your child fails. It's absolutely fine, because अब रिजल्ट आने के बाद अब आप उसको कुछ भी करो वो रिवर्स नहीं हो सकता. इट्स अ नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन. हमें भी जब बिकॉज साइंस में मेरा ताल्लुक साइंस फील्ड से, और मैं इस वक्त पढ़ भी थोड़ा इसी टेक्नोलॉजी और मतलब ह्यूमन उस पर हूँ. तो एक चीज़ जो हम पढ़ते हैं ना वो ये कि आपका माइंड इज द मेन थिंग. हमें चीज़ बचपन में सिखाई जाती है कि अगर ये बोलोगे ना मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, आपको बुखार हो जाएगा. तो अगर आप ये बोलोगे ना मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ट्रस्ट मी, फिर आपके सामने कोई भी आके बैठ जाए, आपके सामने पूरी किताब रख दी जाए ना, आप नहीं कर पाएंगे. सेल्फ कॉन्फिडेंस यहीं से आएगा. पढ़ने से, बुक खोलने से पहले मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे, अभी आपने बुक भी नहीं खोली है एंड यू जस्ट स्टार्ट कि मुझसे नहीं होगा, व्हाट वुड आई डू एंड ऑल दिस. अरे खोलो तो सही, स्टार्ट रीडिंग, पता तो चले कितना आता है और कितना नहीं आता. आपने पहले ही रिजल्ट डिसाइड कर लिया है तो फिर हो गया. आपने तो डिसाइड कर लिया है ना कि आप नहीं कर सकते, तो फिर तो कुछ नहीं होगा. सो प्लीज, फॉर द स्टूडेंट्स हियर, ट्रस्ट योरसेल्फ, एंड फॉर द पेरेंट्स, ट्रस्ट योर चाइल्ड. आपका बच्चा अपने आप में सबसे यूनिक है. ईच चाइल्ड इज डिफरेंट. हमें हर किसी को अलग तरीके से बनाया गया. जब हम सब दिखते अलग हैं तो इसका मतलब है हमारी एबिलिटीज भी अलग है. एंड अगेन शमशेर सर वाली बात कि मेरा ए नहीं आता था, बट अब वो जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उनकी वर्ल्ड डिस्टिंक्शंस आ गई. इसका मतलब है उनकी एबिलिटी उनके उस ग्रेड से काफी ज्यादा आगे थी, वो उससे कहीं ज्यादा केपेबल थे. दैट्स द थिंग. अच्छा, सो हमारे जो है, हमारा सेशन जो है, जो डिस्कशन एस्पेक्ट था वो खत्म हो चुका है. नाउ विल हेड टुवर्ड्स द Q&A सेशन. बट थोड़ा सा हमारे पास एक टेक्निकल ग्लिच था कि हमें बार बार इसको स्विच करना पड़ रहा है, द मीटिंग लिंक, व्हिच इज लिटिल बिट इनकन्वीनियंट फॉर एवरीवन, फॉर व्हिच वी अपोलोजाइज.
मैंने थर्ड लिंक शेयर किया है। अगर Q&A इसके बाद Q&A, आई होप कि हमने मोस्टली आपकी क्वेश्चंस को आंसर कर दिया हो, बट स्टिल इफ यू थिंक कि आपकी कोई चीज़, कोई क्वेश्चन ऐसा है आपका जो अनआंसर्ड रह गया है, सो प्लीज़ डू ज्वाइन दैट द थर्ड लिंक एंड आप वहाँ पे करें। बिकॉज थोड़ा सा हमने जल्दबाजी में क्वेश्चन रीड नहीं किया और हमने जल्दबाजी में मीटिंग स्टार्ट की, तो हम थोड़ा सा टाइम लिमिट पे आ गए थे कि हम एक पर्टिकुलर फॉर एन आवर हम एक सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। सो मैं थर्ड लिंक चैट पे शेयर कर चुकी हूँ, मैं ग्रुप्स पे भी शेयर कर दूँगी, सो काइंडली ज्वाइन फ्रॉम दैट।